میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان میں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورت بھی، اور مجھے شاید ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے بالمقابل زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماں، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہوگی، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں ایک ایسی عورت ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نیکی کا بھی کام کرتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، محلے میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، محلے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں زیادہ دلچسپی ان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے فلا تم اس عورت کے بارے میں یہ بھی بتاؤ کہ ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے، ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے، جب چاہا اپنے پڑوسی کو لعن طعن کیا، جب چاہا اپنے پڑوسی کو گالی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورت اپنا منہ زیادہ چلایا کرتی ہے، غیبتیں کیا کرتی ہے، چغلیاں کیا کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو ستایا کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا ہے، اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا، زیادہ روپیہ والا ہے، یہ اپنے شوہر کے پیسوں سے ناز کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کی عورت کو حقیر سمجھتی ہے، اور جب جیسا چاہتی ہے بول دیتی ہے، الٹی سیدھی بول دیتی ہے، پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتی ہے، پڑوسیوں کو کچھ بولتی ہے تو زیادہ تر گالیاں ہی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسی عورت کے اندر لا خیر فیہا من اہل النار یا من اہل النار، ایسی عورت کے اندر بھلائی نہیں ہے، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ جس عورت کے اندر یہ برائی پائی جائے کہ نماز تو ادا کرتی ہے، تہجد تو پڑھا کرتی ہے، نیکیوں کا کام تو کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو جب چاہتی ہے گالی دیتی ہے، جب چاہتی ہے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ پتا چلا پڑوسیوں کا حق کتنا ہے۔ میری ماں، پڑوسی سے اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمہارے وجہ سے۔ مرد دن بھر آفس میں کام کرتا ہے، تھکا مندہ پسینے پسینے ہو کر آتے ہیں، آپ کو اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے۔ جو تھکان پیدا ہوا، جو تھکاوٹ آئی ہے، آپ ان کے سامنے ایسی بات بولیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، پہلے سے موڈ بنا لیا، جب میرے پتی گھر کے اندر آئیں گے، باتوں کو کرنے میں اور زیادہ ماہر ہے، پہلی باتوں کو بنا لیا کہ آج میرے شوہر کو آنے دو، ساری چیزیں بتاتے ہیں، باتوں کو گڑھ لیتی ہے، اور جیسے شوہر گھر کے اندر آتے ہیں، شوہر سے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، کبھی ساس کے خلاف، کبھی سسر کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اور وہ شوہر باہر میں تھکا مندہ چور چور ہو کر آتے، محنت و مزدوری کر کے آتے ہیں، ان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ان ہائی پریشر میں ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا دماغ اور کھولتا ہے، ان کا جذبات اور بڑھ جاتا ہے، اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تب لڑائی شروع کر دیتا ہے، تب مار شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، آج میں ایک نصیحت آپ کو یہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کہیے گا آپ کو تجربہ کیسے ہوا۔ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، آپ کا شوہر اگر آفس میں آتا ہے، آفس سے کام کر کے آتا ہے، دن بھر محنت و مزدوری کر کے آتا ہے، گھر میں کتنے ایسے معاملات پیش ہو جائے، تمہارے
کسی بچے کا انتقال بھی ہو جائے تو تمہیں صبر کر لینا اور اپنے شوہر کو اس حال میں نہ بتانا، شوہر کو تھوڑا سستانے دینا، شوہر کو تھوڑا آرام کرنے دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، یہ آپ سے یہ نصیحت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ان کاموں کو کرتے ہیں، ان کاموں سے باز آ جائیے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ ہیا من اہل النار، یہ عورت جہنمی میں سے ہے۔ پھر ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ سنت وغیرہ کم پڑھتی ہے، اتنا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ان کا پڑوسی ان سے ناراض ہے؟ پڑوسی کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ، کیسا برتاؤ ہے؟ کہ ان کا پڑوسی خوش ہے، وہ جو کھاتا ہے اپنے پڑوسی کو کھلاتا ہے، پڑوسی کو کبھی گالی نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسی عورت ہیا من اہل الجنہ، جنتیوں میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے۔ تو اس حدیث میں کیا کہا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ اب مرد یہ سوچیں گے عورت کے بارے میں ذکر ہے، مرد کے بارے میں نہیں۔ آئیے میں اس صحابی کا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جنگ کے میدان میں جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، لیکن جنگ ہار جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پکڑنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں مکے والوں کے پاس بیچ دیا جاتا ہے۔ اور کون خریدتا ہے؟ حارث کے بیٹے خریدتے ہیں، اس لیے کہ خبیب ایک ایسا صحابی تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ حارث کے بیٹے نے اس کو خرید لیا۔ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، مطلب یہ ہے ذاتی انتقام لینا ہے کہ میرے باپ کو تم نے قتل کیا ہے، تمہیں بھی اسی موقع پہ اسی بہانے پہ قتل کر دیں گے، اس نیت سے، اس ارادے سے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد گھر لے گئے، خبیب کو گھر لے جایا گیا، مکہ لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ خبیب قید ہے، کبھی تو زنجیر سے باندھا جاتا ہے، ستونوں سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خبیب نے حارث کی بیٹی سے پوچھا اے حارث کی بیٹی، کوئی استورا دے دو، سامان دے دو، بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اس زمانے میں جو چلتا تھا، آج کل تو قینچی وغیرہ بلیٹ وغیرہ آ گئے، اس زمانے میں جو چلتا تھا دے دو۔ حارث کی بیٹی نے اس کو استورا دیا۔ اتنے میں حارث کی بیٹی کی ایک بچہ دوڑتا وہ خبیب کے پاس آیا اور اس کی ران پر بیٹھ گیا۔ قیدی ہے خبیب، اس مثال کو غور سے سنیے گا۔ خبیب کے ران پر بیٹھ گیا، دشمن کی بیٹی حارث کی بیٹی، دشمن کی بیٹی، اس کا مطلب حارث کی بیٹی، کیونکہ انہی کے قید میں خبیب ہے۔ یہ من میں ڈرنے لگی کہ میرے دشمن، میرے قیدی کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا اور ان کے ہاتھ میں استورا ہے، کاٹنے وغیرہ کا آلہ۔ یہ ڈر رہی ہے اللہ، یا جو جس چیز کو وہ مانتے تھے اس وقت، کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، یعنی قیدی کے ہاتھ میں اس کا بچہ چلا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حارث کی بیٹی، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے قید میں ہوں، تمہارے چنگل میں ہوں تو میں تمہارے اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تمہارے اس بچے کو قتل نہیں کروں گا، میرے حوالے ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بچے کو ایسے ہی واپس کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اس کو قید کر لیا گیا تھا اور اس کے ران پر وہ بچہ جا لیٹا تھا، کسی وجہ سے وہ بچہ چلا گیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حارث کی بیٹی لکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے آج تک خبیب جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کاٹنے والا، زخم کرنے والا آلہ ہے
उस्तुरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है, और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं कि जब उसको पीलारों से मजबूत करके बांध दिया जाता, जंजीरों से जकड़ दिया जाता, उनके हाथ में अंगूर का खोसा होता, अंगूर का गुच्छा होता। ये देखकर ताज्जुब करती कि उस वक्त मक्के में कोई ऐसा दरख्त जिसमें फल नहीं था, बेमौसम था, लेकिन उनके पास अंगूर कहां से आ रहा है, उनके पास अंगूर का खोसा कहां से आ रहा है, उनके पास अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। उनको जकड़ दिया गया, बांध दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला गैबी तौर पर उनको अंगूर खिला रहा है। गैबी तौर पर उनका क्या अमल था देखिएगा आगे। अब ऐलान हो गया कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाए, खुबैब को फांसी दे दी जाए, खुबैब को सूली पर लटका दिया जाए, जंजीर से खोल दिया गया और एक मैदान में ले जाया गया। खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी दे दी जाएगी। एक मैदान में ले गया और खुबैब से पूछा, खुबैब अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी से लोग पूछते हैं ना, जेलर जो लोग जेल गए हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है, कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। तो हम और आप क्या बोलते हैं, बहुत लोग ये होता है कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और बहुत लोग ये होता है कि कहता कि मुझे अपनी माँ से मिलाइए, बीवी से मिलवाइए, बेटी से मिलवाइए। और आजकल तो कुछ लोगों ने मजाक बना लिया कि मरना तो है ही, लाओ कुछ खिला दो, कोई हलवा खिला दो, पानी पूरी खिला दो, बिरयानी खिला दो, क्या क्या बोलते हैं लोग कि मरना ही है तो माँ बाप से और मिलके क्या फायदा, कुछ खिला दो। लेकिन खुबैब ने कहा मुझे माँ से नहीं मिलना है, मुझे बाप से नहीं मिलना है, मुझे कुछ खाना भी नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा ही है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ही है कि मुझे 2 रिकात नफली नमाज अदा करने दो, 2 रिकात नमाज अदा करने दो, अंतिम इच्छा है। जो अंतिम इच्छा हो तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है खुबैब 2 रिकात नमाज पढ़ लो। खुबैब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, उस दिन जल्दी नमाज पढ़ ली, जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगता था 2 मिनट में ही पढ़ लिए, 10 मिनट का टाइम लगता था 5 मिनट में ही पढ़ लिए। उसके बाद खुबैब ने कहा आए जालिमो, आए कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिरों, मैं इसलिए लंबी नमाज अदा नहीं किया ताकि तुम ये सोचोगे कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब इस दुनिया से जाना नहीं चाहता है, खुबैब को फांसी पसंद नहीं है, इसलिए नमाज में तूल कर रहा है, इसलिए नमाज को लंबी कर रहा है। मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की पढ़ी, मैंने जानबूझकर आज नमाज हल्की मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कोई ये ना कह सके कि खुबैब मरना नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी इस वाक़े में नसीहत है कि अंतिम इच्छा क्या थी उनकी कि 2 रिकात नफली नमाज। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का एहतमाम कितना किया। नहीं कहा कि मेरी बीवी से मिलवा दो, नहीं कहा कि मेरी माँ से मिलवा दो, अगर कहा तो 2 रिकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मेरे भाइयों, हम और आप क्या क्या अंतिम इच्छाएं सोचते हैं। पहला सहाबी खुबैब, जिन्होंने पहली मर्तबा फांसी देने से पहले, कत्ल किए जाने से पहले नमाज पढ़ने का मुतालबा किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको गैब से अंगूर का खोसा अता किया था। एक बात याद रखिएगा, यही अंतिम इच्छा उस दुनिया में भी पूछी जाएगी। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमि इज़िम बिबनी। क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले उनसे पूछ लिया जाएगा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दुनिया में बीवी बच्चों के लिए हम और आप क्या ना करते हैं, हलाल हराम में तमीज़ नहीं करते कि मेरा लड़के का होना चाहिए, मैं मर रहा हूँ मरने दो, लेकिन मेरा लड़का का होना चाहिए, मेरी बीवी खुश रहेगी तो हमें अच्छा नाम करेगी हमारा।
दुनिया में हम और आप बीवी बच्चों को खुश करने के लिए क्या ना क्या करते हैं, क्या से क्या करते हैं, लेकिन आपकी उस दिन क्या ख्वाहिश होगी जब कहा जाएगा क्या है मुजरिमों बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। आप तमन्ना करेंगे क्या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दीजिए, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से दुनिया में हराम कमाई किया करता था, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दीजिए, मैं इन्हीं की वजह से हराम कमाई किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करने पर सारी चीजें पता चलता है, सच्चाई पता चलता है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। हम और आप माल की मोहब्बत, माल कहां से आए, हुब्बुल माल व तूल उम्र कि माल कहां से आए, इंसान के पैर कब्र में लटक चुके हैं, माल कहां से आए, हलाल हराम के ऊपर तमीज नहीं। इतना याद रखिएगा, सुल्ताना डाकू को जब फांसी पर लटकाया गया, फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी गई तो उन्होंने कहा मेरी मां को देखना चाहता हूं, मेरी मां के सामने मेरी अंतिम मुझे फांसी दी जाए, सूली के ऊपर लटकाया जाए। कहा तुम अपनी मां को अपने सामने क्यों रखना चाहते हो? कहा कि मेरी मां ने तरबियत नहीं दी थी, जब मैं छोटा था चोरी कर रहा था, मेरी मां ने मुझे सबक नहीं सिखाया था, मुझे डांटा नहीं था, मेरी तरबियत सही से नहीं की थी, मुझे पढ़ाया नहीं था, और उस वक्त से मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, परवान चढ़ा, मेरी कुव्वत और बढ़ गई, हिम्मत और बढ़ गई, बड़ा डाकू बन गया और आज मुझे फांसी दी जा रही है। इसलिए सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व इदा स्वामत शहरहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है और रमजान के महीने का रोजा रखती है, उस जमाने को याद करो, उस जमाने में औरतें नफली रोजा का भी कितना एहतमाम करती थी। आइए एक वाकया बता रहा हूँ, लेकिन ये वाकया कहाँ तक सही है, मुझे इसकी सच्चाई और हकीकत मैं इनके बारे में तलाश ही नहीं किया हूँ, लेकिन इस तरह वाकया लिखा हुआ है कि एक औरत जब नमाज पढ़ती थी, एक औरत जब नमाज पढ़ती थी और रोजा रखती थी, जब नमाज पढ़ती थी उनका शौहर इतना मारता था, इतना पीटता था, वो औरत शिकायत करने पर मजबूर हो जाती। और जब नफली रोजा रखती थी, नफली रोजा, और जब नफली रोजा रखती थी तो उनका शौहर तुड़वा देता था। नमाज ज्यादा पढ़ने पर मार और रोजा रखने पर तुड़वा देता था उनका शौहर। हम और आप ये सोचते कि उनका शौहर बड़ा जालिम होगा, नहीं, पूरा वाकया सुनिए। शिकायत अल्लाह के रसूल से की, क्या अल्लाह के रसूल जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारता है, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर रोजा तुड़वा देता है। क्या तुम्हारा शौहर कौन है? क्या ये मेरा शौहर है, बगल में बैठा हुआ था। उनके शौहर से अल्लाह के रसूल ने पूछा तुम्हारी नमाज, तुम्हारी औरत अगर तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, नमाज अदा करती है तो क्यों मारते हो? तुम्हारी बीवी अगर रोजा रखती है तो क्यों तुड़वाते हो? उसने जवाब दिया अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी नमाज में इतनी ताखीर कर देती है, लंबी लंबी सूरतें पढ़ती है, नमाज में इतनी लंबी, नमाज को इतनी लंबी करती है, नमाज इतनी ताखीर से पढ़ती है कि रात की आधी हिस्से गुजर जाते हैं, रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाता है। मैं जवान हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको इशारतन किनायतन वाकया बता रहा हूँ, खुलकर आप बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा। वो कहता है अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं रोक नहीं पाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अल्लाह के रसूल मैं अभी जवान हूँ और मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो लंबी लंबी सूरतें पढ़ा करती है। मेरी बीवी जब नमाज पढ़ती है तो 2 रिकात की जगह 4 रिकात नफली नमाज पढ़ती है, 4 की जगह 8 रिकात नमाज पढ़ती है। मैं कहता हूँ कि जल्दी नमाज पढ़ के आ जाओ, वो और उसको तूल करती है और लंबी कर देती है, इसलिए मैं मारता हूँ। अच्छा ऐसी बात का मोहतरमा, नमाज में लंबी ना किया करो, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी इस उम्र में जरूरत है, तुम्हारी
ख्वाहिश, तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश, इस वक्त दोनों को जरूरत है कि एक दूसरे की हामी रहे, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, एक दूसरे के हक में रहे। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है और उसको तुम्हारी जरूरत है। इसलिए तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें जल्दी अपने बिस्तर पर बुलाता है तो तुम आ जाया करो, और नमाज में लंबी ना किया करो, नमाज में 2 सूरतें पढ़ा ना करो, एक सूरत से भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अच्छा बताओ रोजा क्यों तोड़वाते हो? कहा अल्लाह के रसूल, मैं जब दिन में अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता हूँ तो मेरी बीवी का जवाब वही आता है कि आज मैं नफली रोजे से हूँ। 1 दिन में बर्दाश्त करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, 4थे दिन गुस्सा आ जाता है तो मैं मार भी देता हूँ और रोजा तोड़वा भी देता हूँ। ये कसरत से नफली रोजा का एहतिमाम करती है। अल्लाह के रसूल, मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि नफली रोजा रख रहे हो लेकिन इतना ना रखा करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि कोई औरत इस हाल में कि जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, जब उनका शौहर उनके घर में मौजूद हो, उनके पास मौजूद हो, तो वो नफली रोजा ना रखे इल्ला बिइज़्निही। हाँ, शौहर की अगर परमिशन मिल जाए, हाँ शौहर की अगर इजाजत मिल जाए। इस्लाम ही है जो हर रास्ता निकलता है। औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में, वह बालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ, इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी आपको। इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बतलाया, क्या शौहरों, व इन्ना लिअइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए इन सब मामले में, तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये सब कंडीशन पर तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहां नफली रोजे का एहतिमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता है उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करे कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतिमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके, वो करना पड़ेगी। अगर कहें कि पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, अभी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन
दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाए, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है, एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें हैं। आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, आए औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखिए, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है? आपने फरमाया तुक्सिरनल लान व तखफुरनल अशीर, एक किस्म की औरत वो होंगे जो लान तान ज्यादा किया करती है, मुंह चलाया करती है, जब देखो बातचीत करती है। अल्लाह के रसूल ने औरत की आवाज को भी पर्दा करार दिया गया है, लेकिन जब चाहो लड़ो, जब चाहो आवाज निकालो, जब चाहो गाली दो, जब चाहो फजूल बात करो, जब चाहो जुबान चलाओ, जब चाहो गीबत करो, जब चाहो लान तान किया करो। तुक्सिरनल लान, उनमें से किस्म की औरत है जो सबसे ज्यादा लान तान किया करती है, और दूसरी किस्म के लोग वो होंगे जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। ये चीज टच खाया मौजू से कि जो अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। शौहर की नाशुक्री से मुराद ये कि मेरे भाइयों, उस औरत को जितना खिलाओ, जितना पिलाओ, वो कभी आपका नाम नहीं लेंगे। जितना दिन पिलाओगे, जितना दिन खिलाओगे, वो आपके साथ रहेंगे। जैसे कमियां पड़ जाएंगी, उनका इरादा बदलता जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो किसी से पूछ लीजिएगा जिनकी शादी हुई है। अब फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए, फिर ऐसा ना हो कि कल हम ही से पूछिए। एक चैनल वाले लिख दिया, मेरी तकरीर में क्या लिखते जानते हैं कि बीवी से कैसे रहना है, बीवी खुश ना हो तो क्या करें। ये चैनल वालों ने लिख दिया। हमारी अभी हुई नहीं, हमारे ऊपर ये बड़ा बड़ा इल्जाम दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत से मतलब है शौहर अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दे तो नमाज पढ़ना पड़ेगी। शौहर अगर कह रहा हो मेरी बीवी, मैं घर में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ, मैं दिन में काम में चला जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, तुम अमानत में खयानत न करना, मेरी परमिशन के बगैर मस्जिद में भी नहीं जाना। इतना है इस्लाम में, मेरी परमिशन के बगैर तुम बाजार न जाना। लेकिन वही शौहर जैसे घर से निकल गया, उनकी बेपर्दगी नजर आ गई। ये क्या चीज है? अब क्या कीजिए, टाइम हो गया। अच्छा, फिर रत्नी में आएंगे तो पढ़ेंगे, अब करीब है। शौहर की इजाजत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ औरतों की आदत ये भी, हरकत ये भी है, शौहर जैसे निकला उनकी बेपर्दगी नजर आ गए। एक मर्तबा किसी ने अपनी बीवी का इंटरव्यू लिया, इम्तिहान लिया। कैसे? थोड़ी दूर गया,
बीवी को जिस लिबास में देख कर गया कि बीवी तुम इस लिबास में रहना, पर्देगी के साथ रहना, बापर्दा रहना, थोड़ी दूर गया वो औरत फिर अपने ही शक्ल में, अपने ही हुलिया में आ गए। जब घर लौटा, दरवाजा खोला, बीवी को बरहाना हालत में पाया। जो उनका मामूल था, शौहर निकला, जो उनका रवैया था वो इख्तियार कर लिया, पकड़ा गया चोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ही है शौहर अगर आपको तो खुद से करना ही है, लेकिन शौहर अगर कहे कि नमाज अदा करो, रोजा रखो, अल्लाह को याद किया करो, किसी से झगड़ा ना किया करो, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। और ये मंत्र भी रामायण, ये मंत्र भी विवाह श्लोक में, रामायण में नहीं है लेकिन विवाह श्लोक में है, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सास की खिदमत वैसे ही करो जैसे अपनी माँ की करती हो। शौहर अगर आपको ये कहे तो करो, लेकिन शौहर तो दिन भर ऑफिस में रहता है, आपने सास की हजारों गलतियां निकाल कर शौहर को बतला दिए, शौहर भी अपनी माँ पर नाराज हो गए, इसलिए कि वो दिन में बाहर रहता है, उनको पता नहीं चलता है। बीवियों की सारी बातें सुनकर माँ से लड़ाई शुरू, बाप से लड़ाई शुरू, सारी चीज औरत का हाथ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ औरतों के ही खिलाफ बोलते जा रहे, लगता हम लोगों का कुछ हक ही नहीं। हक है, मर्दों को भी इस्लाम में कहा, कुरान में वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या है मर्दों तुम अपने औरत के साथ बूद व बाश तरीके से पेश आओ। हदीस में, अबू दाऊद की हदीस है कि तुम जिस मायार के खाना खा रहे हो, जितने रुपये वाला खाना खा रहे हो उतने रुपये वाला उनको भी खिलाओ, यानी तुम जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ, जो पहन रहे हो उसको वही पहनाओ। अब फिर ऐसा नहीं जो आपका कुर्ता है, शर्ट है, पंजाबी है वो जाके पहना देना, ऐसा नहीं। मतलब आप जितने रुपये वाला खरीद के पहन रहे हो उतना उसको भी पहनाइए। आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं, यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो तार के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो, आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मरतबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउडी है, मैं क्या खिलाऊं, तो खुद राउडी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा, सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा, आप घर में बैठे सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेंगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलीटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाकया अगर याद रहे तो बताऊंगा, गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है, तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज मानिए, सजदा क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि नहीं। सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे।
اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں، اگر باپ کا کچھ پراپرٹی مل جائے نا، باپ کی طرف سے کچھ مل جائے تو شوہر کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے، جب چاہیں گے نچوائیں گے. میلہ والا لگتا ہے ہمارے وہاں کھگڑا کا میلہ لگتا ہے، وہیں پہ نچوائیں گے. باپ کی اگر پراپرٹی مل جائے، آج تو باپ کا یہ، آج تو بھائی کا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئیں گے کہ شوہر کیا چیز ہوتی ہے. اللہ کی قسم میں بول رہا ہوں، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ عورتیں اگر باپ کی طرف سے کچھ پراپرٹی کچھ جائیداد مل جاتی ہے ان کو، تو اپنے شوہر کو نچواتے ہیں. جب چاہا کھڑے، جب چاہا بیٹھ جاؤ، جب چاہا کھڑے ہو جاؤ. اتنا یاد رکھیے گا، یہ شوہر کی ناشکری ہے. اب شوہر کو ٹھکرا رہے ہیں. ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کا پیار ہو گیا، لڑکی نے کہہ دیا کہ میرے ابو آپ سے شادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اوقات دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی اوقات کتنی ہے کہ میری بیٹی سے پیار کریں، اس کو میرے گھر بلاؤ. وہ لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے فون میں کہہ دیا کہ تمہارے ابو کو کہہ دینا کہ وہ غریب کے گھر میں نہیں جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اوقات دیکھنا چاہتا تھا، میری بیٹی سے پیار کرے گا، میرے گھر آؤ پتہ چلتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے. انہوں نے فون میں کہہ دیا کہ میں غریب کے گھر نہیں جاتا. تو ہوتا ہی ہے. تو ایسا آپ سیکھ لیجئے، آپ پھر ایسا نہیں کہ پیار کرنے بیٹھیے. میں آپ کو ایک چیز بتلا رہا ہوں تو میرے بھائیوں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ بولے میں بناوٹی بتا رہا ہوں، باقاعدہ کتاب ہے میرے پاس ان سب چیزوں کے بارے میں. اور الحمدللہ 1-2 سال سے میری محنت اور کچھ زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آگے اور بڑھ سکوں. کچھ حاسدین ہیں میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی ہمارے محبین بہت ہیں، اس لیے آپ خصوصی طور پر میرے لیے دعا کیجئے. تو یہ ہے عورت اپنے شوہر کی ناشکری سے بچے. اگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر مال ہے شوہر کا، عورت کو حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. لیکن اگر آپ یہ ذمہ داری دے کے جائیں گے نا کچھ دنوں کے لیے، اگر ان کے ہاتھ میں ساری جائیداد آ جائے، پراپرٹی آ جائے، کبھی آپ کو طلاق دے کے خلا لے کے نکل جائیں گی. لیکن اس لیے اس کے ہاتھ میں اتنا بھی مت دیجیے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا غربت میں ڈالا، اتنا غریب کر دیا. انہوں نے اپنے کسی عورت سے کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ پڑوسی کی عورت سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو 1 ہی مہینہ میں لکھپتی بنا دیا. اب ان کی پڑوسی کہنے لگی اچھا اس کا مطلب تیرا شوہر پہلے غریب تھا؟ کہ غریب نہیں، پہلے وہ کروڑ پتی تھا، میں اس کا پیسہ چرا چرا کر اس کو لکھپتی بنا دیا. پہلے کروڑ روپیہ کا وہ مالک تھا، اب میں اس کے پیسے کو ٹرانسفر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کرتے کرتے ان کو لکھپتی بنا دیا. تو پہلے سمجھیے گا وہ کیا بتانا چاہتا. عورتوں کے مزاج ہے میرے بھائیوں. اس کتاب میں باقاعدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ عورتوں کی شاطرہ دماغ، شاطرانہ چال یہ ہے. ایک مرتبہ کسی عورت نے کسی عورت سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مرد ہمیشہ اوپر رہتا ہے عورت نیچے رہتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے عورت کو اتنا حقیر کیوں بنایا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس لیے نیچی کر کے پیدا کیا تاکہ مرد جب بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے، اور جب ہم بات کریں تو سر اٹھا کر بات کرے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، وَعَطَى زَوْجَهَا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی کبھی ناشکری نہیں کرتی ہو. میرے پیارے ساتھیوں، تیسری چیز ہو گئی اور ایک چیز بچ گئی. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنے سے نہیں بچو. شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق دوسروں سے اتنا زیادہ نہ کیا کرو. مجلس میں چلا کرو تو احتیاط سے چلا کرو. جب راستوں میں چلا کرو تو برقعے کے ساتھ چلا کرو. راستے کا سفر کرنا ہے، کسی جگہ کا یاترا کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو اگر دائیں طرف مرد ہے تو بائیں طرف چلا کرو. حدیث کے الفاظ ہے کل عین زانیہ، ہر آنکھ زانی ہے. فہیا قضا و قضا، ان میں سے وہ عورت بھی ہے. فمرت بالمجلس، جو مجلس سے گزر جائے، صرف گزر جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، عورت کو اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے، اتنا خیال رکھنا ضروری ہے. شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں زنا سے بچے. ان کے علاوہ اور بھی جو دیگر بے پردگی کی چیز ہے ان سے بھی بچے.
अल्लाह के रसूल के पास एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई और कहा अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, उसमें होता है कि जब किसी आग को वो देख ले, पानी को देख ले, वहीं पे उनका दौरा ये शुरू हो जाता है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आग को देखेंगे, आग जिस तरह भड़कता है वो भी भड़क जाएंगे। तो इसलिए मिर्गी का दौरा उस औरत को आया। उसने अल्लाह के रसूल से आके बतलाया कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया ये सुनिए, इन सबर तिलके इन शीति सबर तिलके, आए औरत सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो। सबर अगर करती हो मेरी बहनों, सुनो इस वाक़े को, अगर सबर कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर सबर नहीं करते हो, अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। उस जमाने की औरतें कितनी नेक थी, कितनी सीरत वाली थी, जन्नत की ख्वाहिश कितनी रखती थी। उसने कहा एक तरफ सब्र करने से जन्नत मिल रही है, दूसरी तरफ इस दुनिया की परेशानी पसंद है लेकिन जन्नत खोना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे अगर तुम सब्र कर रहे हो तो वलकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर देता हूँ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या काम? वो मौजू से टच खाएगा। जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, जब ये बीमारी मुझे आती है तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। जिसको देख कर लोग हार महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन मेरा शर्मगाह खुले, मेरा सतर खुले ये पसंद नहीं है। आप मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है मैं दुआ कर देता हूँ, आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा आएगा, ये बीमारी आएगी तो तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। इतना एहतिमाम करते थे वो लोग, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते थे, अपने सतर की हिफाजत करते थे। आइए इस्लामी चीज तो हुई, केरल के अंदर वो लड़की जिनको नंगेली के नाम से याद किया गया, नेटिव लाइफ इन ताउनकोर के अंदर ये टैक्स लिखा गया, मुला करम टैक्स के नाम से जिनको जानते हैं, ब्रिटिश टैक्स के नाम से जब ये कानून नाफिज किया गया, सतर खुल के रहना होगा, शर्मगाह खुल के रहना होगा, छाती खुल के रहना होगा। अगर कोई नहीं करता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एक औरत थी, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पैसा देना पड़े, लेकिन मैं अपनी शर्मगाह खोलने के लिए तैयार नहीं, सतर खोलने के लिए तैयार नहीं। जब टैक्स मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, छुरी उठाई, चाकू उठाया, अपने हिस्सान को काट दिया। कहा मंजूर है, इस दुनिया में रहना बेहतर नहीं, लेकिन पर्दा बेपर्दगी रहना पसंद नहीं है। जब ऐसा किया, प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, तो उस गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, चाहे किसी भी धर्म की औरत हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर हकीकत में इज्जत की अगर वैल्यू जानती है तो वो कभी नहीं कहेंगी जिनको रहना रहे। जो ये चिल्लाते रहते हैं कि ये इस्लाम में पर्दा, ये इस्लाम में पर्दा, वो खुली रहे, साड़ की तरह रहे, उससे कोई मतलब, आप उनसे बहस मत कीजिए। इस्लाम में जो है उसको अपनाइए। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारहिला, इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारे अंदर जो गलती हो अल्लाह इसको नज़रअंदाज करके हमारी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। हमारे अंदर मज़ीद वो सलाहियतें पैदा कर दे, वो क़ुव्वत पैदा कर दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर गलती है, आप इस्लाह कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रात गिरामी।